being recorded. And this is Sir Sibu Rahman. If you remember, we discussed in our last class about the usage of present progressive. Something is happening around us, something is happening um, around the time, something is happening at the time of speaking. You are describing a situation, something is changing and something is developing. I mean, changing and developing situation. Um, then after that, we discussed about the future arrangements, temporary situations. And now today we are discussing what? A few structures which we commonly use in present progressive. Look at this structure first. Is MR having 2 plus base form of verb? Why do we use this structure? We use this structure to talk about temporary obligation. Temporary obligation means कोई ऐसी जिम्मेदारी जो वक्ती तौर पर निभानी पड़ रही हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो वक्ती तौर पर निभानी पड़ रही हो। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो वक्ती तौर पर निभानी पड़ रही होती है। अब आप लोग सोचें कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपके कांधों पर जो आपको आजकल निभानी पड़ रही है, सोच के सर बहुत सारी है। एक बता दीजिए जो वक्ती तौर पर निभानी पड़ रही है। वक्ती तौर पे सर वक्ती तौर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस जो हमने कभी होता है कि आजकल मुझे अपने बहन के बच्चों का ख्याल रखना पड़ रहा है, वो लंदन सर में मुझे आजकल कपड़े धोने पड़ रहे हैं, मेरी मासी को बुखार है। I am having to wash clothes these days. मजा Yes, आता है sir. कपड़े धोने में, तो अच्छा मजा आता है। जी सर, सर्दी में तो और मजा आता है। Yes, chilled water and feeling chilled, then you are Yes. washing clothes. Then the cold breeze comes and the next day you are in fever. Then somebody is looking after you. Yes, sir. Seriously. But Do you here, think so? here the things are totally opposite. If you are ill, nobody looks after you. You have to look after yourself. Right. Okay. Today Today I have to I'm give saying- two medicines. Then I am sitting for your class. Before your class, I was shivering and I had fever because last night I went on bike and that was too Oh, cold. that's why. So, and today my Very throat, cool day. yeah, and I was riding on towards University Road in Karachi. It was too cold there. Extraordinary. It's very open, sir. Yeah. Assalamualaikum, Yes, sir. sir. I have Walaikum. idea about that area because it's very near for me, very near for me. Oh, I live in also same area. After Madras, you must have seen Madras Chowk. Very famous chowk these days. Yes, sir. Yes, somebody is here who wants to add something. आज इस क्लास में 20 बच्चे कैसे हो गए माशाल्लाह, 21 हो गए वो आप ही कहाँ से आ सर गए? आपकी तबीयत खराब है ना? आपका सुन सर आपने व्हाट्सएप पे डिस्कशन सेशन ग्रुप ज्वाइन करने को कहा है और अब आपने क्लास स्टार्ट कर दी। नहीं, अच्छा देखो आज तबीयत खराब है ना, वो तबीयत खराब होने में ऐसे ही होता है। नहीं, मैंने ग्रामर क्लास लिखा है ये जी सर, वो ये बच्चे उधर चले गए हैं डिस्कशन सेशन में। नहीं, ये स्टेज 2 की क्लास चल रही है, स्टेज 2 की क्लास चल रही ओके है। सर, सॉरी सर, इट्स ओके। सॉरी सर। आप आगे की ग़िज़ा पहले खाना चाहे तो आप खा सकती हैं, अब आप आ गई है तो अब जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। सर सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके। वही तो आज बच्चे ज्यादा हो गए। बेटा ये स्टेज 2 की क्लास चल रही है, अभी स्टेज 1 वाले जो जी है सर, आई गेट यू, आई गॉट यू, थैंक यू सर।
Okay. Okay. Thank you. Sarasib is having to attend extra classes. Sarasib को extra classes लेनी पड़ रही है. I'm having to spend extra money these days for the marketing on voice project, but I don't think so. It's gonna be a successful project for anyone who is working online. So people who are interested in online working don't never focus voice. It's a waste of money. So yes, Okay. और किसी को कुछ और करना पड़ रहा है आजकल. What are you having to do? I'm having to. I'm having to. I'm having to. I'm having to. I am having to. बनाइए जुमला. I am having to. एक जुमला बना I लीजिए तो वो am जबान पर हो. having to press my clothes. I'm having to doing an online job with Ah. online classes also. You are having to find an online job. Very good. Today I Yes. found like I came across two very good, beautiful, I mean talented ladies. आज भी बड़ी दो तीन अच्छी फॉल आए बड़े अच्छे. मतलब I had a chat with those ladies on phone and I felt very much good कि हमारे मुल्क में खवातीन इतना आगे बढ़ रही है कि वो like Sir, those thing that I'm working, I'm trying to learn how to earn online. और उन्होंने मतलब she is learning e-commerce online and she wants to improve her English so she can do business outside the country. So I appreciate it. Like you guys, most of the females they are willing to learn. And today one of my aunt she came from Dubai and she said, Asib, I want to do something. Teach me. Learn social media marketing or freelancing. sir, I am already doing since of 2013. Yeah, it's very good. टुक टुक करके देखिए मैं कहता हूँ छोटा सा कारोबार शुरू करें. बिल्कुल छोटी इन्वेस्टमेंट से 3,000 5,000. Sir, I was quite my job in UBL. For that time, I was starting my own business. Very good. And you did a very good thing. You know, one day you will kick your job and you will focus your business. Are you still Yes, doing job in inshallah. UBL or have you stopped doing job? अभी भी नौकरी कर रही हैं आप? You. No, sir, I quit my job. You I was working in UBL head office, but I am running my own business. I work as a fashion designer. I supply my clothes in Yeah. local market and my international client. Yeah, this is the live example. Live example. This is my also one of my friends did the same. Like he visited a few countries. He started buying some cloth. Then he started stitching. Then selling back to the same countries. Sir, Okay. I will design inshallah big chamber for stitching unit. Na? Yeah. So after Eid, I will start that my Inshallah. project. Inshallah. Wish you best of luck. I am having to. अब यहाँ पर लिखा हुआ है राशिदा is having to take many classes for improving English. हमारी एक स्टूडेंट थी बस राशिदा. वो सुबह से लेकर रात तक क्लासेस लेती थी. तो उनके ऊपर एक जुमला बनाया था. Rashida is having to take many classes for improving English. Tania is having to prepare dinner for her in-laws. ये भी एक हमारी स्टूडेंट थी तानिया. I'm having to give extra time to kids for studies. पेपर होने वाले होते ना. अब अक्सर Yes, हम sir. कहती है I'm having to give extra time to kids for studies. I am having to extra time for my vocabulary. I'm having to give extra time to my vocabulary. Yes, sir. अब आ रहे हैं ये हो गया having to. ये have to की बहन है. having to basically कोई काम जो आपको करना पड़ रहा है. अब आपके पास है is MR going to plus base form of verb. Is MR going to plus base form of verb. जब हम बात करते हैं is MR plus going to, देखो यहाँ पर ये going to का मतलब ये नहीं है मैं जा रही हूँ कपड़े खरीदने. I am going to buy
ड्रेसेस, जी नहीं। ये जो गोइंग टू है ये एक स्ट्रक्चर है। ये जो गोइंग टू है ये एक सर इसका मीनिंग होगा ये जो गोइंग टू है ये एक स्ट्रक्चर है और ये बात कर रहा है फ्यूचर की। अच्छा, जब हमने इज एम आर को देखा तो इज एम आर देख के भी हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि सर इज एम आर तो बात करता है प्रेजेंट की और आपने यहाँ लिख दिया है फ्यूचर। अब ये कैसे होगा भाई? कल ही आपने देखा जब आप लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ रहे थे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कैन टॉक अबाउट फ्यूचर। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फ्यूचर की बात कर सकता है, करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ पर जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है वो भी यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और ये अक्सर आपने सुना होगा, शी इज गोना किल यू, शी इज गोना किल यू, I'm gonna kill you, I'm gonna kill you। Yes, sir. ये वही स्ट्रक्चर है, गोइंग टू को गोना कर दिया जाता है और आई एम को वो बिल्कुल मिला देता है, I'm gonna kill you, I am going to kill you। अब ये क्या बात कर रहा है? ये कहता है we use this structure to talk about strong intention, यानी कि आने वाले मुस्तकबिल के लिए पक्का इरादा करना, आने वाले मुस्तकबिल के लिए पक्का इरादा करना। अब फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई जो है वो इंटरव्यू के लिए गया और वहां पर जनाब हो गई बेइज्जती, खड़े खड़े बाहर से, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? नो सॉरी बीबी, आप यू आर डिस्क्वालिफाइड। लेकिन मैं आई एम क्वालिफाइड, आई हैव डन डबल मास्टर्स, सो व्हाट? वी नीड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। We have written that fluency in English is mandatory, compulsory. No matter you have done this and that, but you must have good knowledge or good fluency because we have international clients. What will you do then? Okay, अब मोटे मोटे आंसू लेकर जो है वो अनीका घर पहुंच गई, आके 2-3 गिलास तोड़ दिए। घर वालों ने क्या हो गया, खैरियत तो है? 2-3 अनीका ने जब गिलास तोड़े तो फिर थोड़ा सा हौसला आया। आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। मैंने कहा क्या हो गया बताओ तो भाई। आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, बस मैंने बता दिया आपको। आप ही हमेशा रोकती रहती थी मुझे। मैं ज्वाइन करने वाली हूँ बस इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, कुछ भी हो, कहीं भी जाना पड़े मुझे, जितने भी पैसे देने पड़े, मैं इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। आपने ये क्या कर लिया? पक्का इरादा। फौजिया, इकरा, मरियम, तीनों दोस्तें बैठी हुई थी, चाय चल रही थी, हाथों में मोबाइल। ऐसी 3 दोस्तें होती ना, बैठी होती है, वक्त जाया कर रही होती है, ये तीनों भी बैठी हुई थी। और भाई फौजिया क्या कर इरादे तुम्हारे? बस यार मैं तो इंग्लिश सीखूंगी जब टाइम मिल जाए, आजकल तुम्हें पता है कितनी मसरूफियत होती है, टाइम नहीं है। आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। ये आपका क्या है? इरादा है। अभी ऐसी जिंदगी में कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि ये कहे आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, जैसे अनीता के साथ हो गया। अब ये कहिए आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, और ये हमने कहा वेल आई विल ज्वाइन योगा क्लासेस। इकरा ने कहा I will try to be a part of Amazon classes. I have some craze of doing business. I will do this and that. ये इरादे आप लोगों के जो अक्सर आप लोग करते हैं और फिर भूल जाते हैं। एक इरादा आप लोगों ने इंग्लिश सीखने का भी किया है। I will improve my English. I will improve my English, ये आपका इरादा है। इरादा भी हो सकता है, आपकी अभी आगे बात करेंगे, प्रेडिक्शन भी हो सकती है, ठीक है ना। I will improve my English इंशाल्लाह। अब ये I will join language classes, this is intention। intention का मतलब है इरादा। लेकिन जब ये इरादा पक्का इरादा होगा तो फिर कैसे बनेगा जुमला? आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। अब फिर वही आदत से मजबूर अनीका ने जो है मोबाइल हाथ में ले लिया। भाई अब जाओ थोड़ी किताबें पढ़ो लैंग्वेज की, नहीं, लेकिन फिर मोबाइल में लग गए।
अब मोबाइल में इत्तेफाक से इनकी नजर पड़ गई एक ऐड पे क्लिक किया, लैंग्वेज क्लासेस के हवाले से, SKH इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन क्लासेस, 2000 रुपीज मंथली। ओ माय गॉड, ओनली 2000 रुपीज। यस, 5 months ड्यूरेशन, 5 months। अब उन्होंने सारी तफसील ली, उन्होंने कहा मैं फारिग हूँ, बिल्कुल फारिग हूँ, सुबह से लेकर रात तक, मुझे सिर्फ लैंग्वेज सीखनी है, आप बताएं कब से ज्वाइन करना है। ओके डन। पैसे कैसे कैसे भेज दिए आप? फौरन पैसे भेजे, अरेंजमेंट कर लिए, क्लास टाइमिंग सेट कर ली। आई एम ज्वाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम थर्सडे। मम्मा के पास गई, मम्मा आई एम ज्वाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम थर्सडे। बेटा कहाँ जा रही हो? तुम देखो आजकल इतनी सर्दी है, कहाँ जाओगी तुम? अरे मम्मा घर में बैठ के हीटर के आगे बैठ के क्लास होगी, आप टेंशन क्यों ले रही है? ऑनलाइन क्लासेस लोगी, देख लो बेटा पैसे डूब ना जाए, पहले भी तुमने कितने पैसे आग लगाए इसी चक्कर में। अरे मम्मा नहीं, लग तो रहे सर, फ्रॉड नहीं होंगे, देखते हैं किस्मत आजमा लेते हैं यहाँ पे भी। आई एम ज्वाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम थर्सडे। ये हो गया आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर अरेंजमेंट्स। बात समझ आ रही है? अब देखो तीनों जुमले फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, इरादा। आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, पक्का इरादा। आई एम ज्वाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम थर्सडे, इसका मतलब जनाब आपने अरेंजमेंट हो गए हैं, पैसे जमा करा दिए हैं, एडमिशन ले लिया है, फॉर्म सबमिट कर दिया है, सारे मामला हो गए, बस इंतजार है तो थर्सडे। क्लियर? Yes, sir. नई नई शादी हुई, नई नई बेगम और एक पुरानी सी गाड़ी, जा रहे थे गाड़ी में, गाड़ी बंद हो गई। घूमने जा रहे थे, बेगम ने हमें देखा, हमने बेगम को देखा। मैंने कहा बेच दूंगा मैं ये गाड़ी, मैं बेच दूंगा। ये मेरा क्या था? ये मेरा क्या है? सर इंटेंशन। ये मेरा इरादा है, इंटेंशन। यस सर। वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, और फिर क्या हुआ? सर आप बोर हो गए गाड़ी से। गुजर गए, बेगम के भाई की शादी, और जनाब बीच में गाड़ी बंद हो गई। बेगम ने सर जोर आप से बोर हो गए गाड़ी से। डैशबोर्ड पे जोर से हाथ मारा, 3-4 चूड़ियां टूट गई। अब जब गुस्से की ये हालत देखी तो हमने कहा आई एम गोइंग टू सेल माई कार, मैं ये गाड़ी बेचने वाला हूँ। बच्चों ने पीछे, बच्चे भी हो गए थे माशाल्लाह, 10 साल हो गए, बच्चों ने भी पीछे से कहा अब्बा आप पिछले 10 साल से ही बोल रहे हो, आई एम गोइंग टू सेल माई कार। लेकिन मैंने कहा देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विल एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वी गोइंग टू। पढ़ लो तुम लोग, लिख लो अपनी नोटों को आज निकाल के। अरे अब्बा एक तो आपके स्ट्रक्चर नहीं खत्म होते बेटा, लिखो, सिचुएशन आ गई देखो। अगर मैं यहाँ पर ये जुमला बोलता आई विल सेल माई कार, तो इसका मतलब है अगली दफा भी यही हालात होते हैं। लेकिन अब तुम्हारे अब्बा ने फैसला कर लिया, आई एम गोइंग टू सेल माई कार, इरादा है। मम्मा की देखो 2 चूड़ियां टूट गई है भाई, खून निकल रहे हाथ से। फिर उन्हें दरवाजा खोल के उतरी, मैं जा रही हूँ, और अब मैं घर जब ही आऊंगी जब आप मुझे नई गाड़ी में लेने आएंगे। हेलो भाई, अब तो चलो बच्चों आ जाओ, आ गए तुम्हारे मामू लेने, गाड़ियों की कमी नहीं है वो है मामू के पास। हाँ तो एक ले लो आप अपने भाइयों से, अगर इतनी गाड़ी है उनके पास। बस ये दिन रह गया था देखने के। चलो पप्पू गाड़ी में बैठो। अब हम क्या करें भाई, हालात बिगड़ गए। अब बहरहाल OLX पे लगा दी, फेसबुक पे लगा दी, लोग अजीब अजीब कॉमेंट कर रहे हैं, आग लगा दो, सबका कर दो। मतलब कौन खरीदेगा ऐसी गाड़ी को? बहरहाल एक गरीब ने खरीदने का इजहार कर दिया, भाई मैं ले लेता हूँ। स्क्रैप डीलर था, 1 लाख रुपए उसने कहा, भाई 1 लाख रुपए दूंगा मैं इसमें। हमने कहा भाई बहुत है आपका। कहने ठीक है, कल बिल्डोजर लेकर आ जाऊंगा, मैं चढ़ा दूंगा इसमें। मैं कहा नहीं देखो सर सामने बहुत मत कम है, करो। 1 लाख तो बहुत कम है सर। वो गाड़ी भी बिल्कुल खचाड़ा थी, तो वो सर FX होगी। FX ही समझ लेंगे, ऐसी गाड़ी हो सकती है। तो बहरहाल मैंने कहा देखो भाई सामने मत चढ़ाना, बिल्डोजर दिल का रिश्ता है इससे, बहुत पुरानी यादें हैं,
शादी के बाद इसी में घूमते थे, मरी तक गए इसमें भी। वो अलग बात है, बीच में 20 दफा बंद हुई, लेकिन पहुंच गए थे मरी, और वापस भी आए थे। तो आई एम सेलिंग माई कार, आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट वीक। जब उसने टोकन मनी कर दी, उसने 5,000 रुपए दे दिए, अरेंजमेंट हो गए, कोई अब खरीदने के लिए तैयार हो गया, आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट वीक। ठीक है, आई विल मीट माई फ्रेंड्स टुमारो। ये आपका क्या है? अब आप बताइए, ये क्या है आपका? ये इरादा है, Intention. इंटेंशन है। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, ये क्या है? कौन सा Strong इरादा? intention. स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। अब ये नहीं कि तुम कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो गए, सोलर मॉडल लगा के घर से निकलने लगी, अब्बा ने मुझे कहा जा रही हो भाई, अब तुम्हारे मुंह से जुमला यही निकलेगा, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, बट यू आर गोइंग फिजिकली, तो दैट्स नॉट ए स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं आप बात? तो सिचुएशन को समझना भी है ना, कि सिचुएशन आप किस में। आप अभी आप घर में बैठी हुई है, चाय पी रही है, वेल आई विल मीट माय वेरी ओल्ड फ्रेंड टुमारो, आई एम गोइंग टू मीट वन ऑफ माय फ्रेंड टुमारो। कल तो बस मैं अपने एक दोस्त से मिलने वाली हूँ भाई, इरादा कर लिया मैंने, वो बहुत नाराज हो रही है, उसकी शादी होने वाली है, फिर वो कनाडा चली जाएगी। बस आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड, इरादा है आपका। सरसी विल स्टार्ट हिज न्यू बैचेस नेक्स्ट मंथ, इरादा है। सरसी is going to start his new batches next month, पक्का इरादा है। I am going to close admission for the month of January, इरादा है। तो जब इरादे की बात करेंगे आप, तो आप वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? Going to, I am going to start listening session next week, इरादा है। और अगर मैं ये कह दूं I am starting listening session on 18 January, ये पिछले साल हमने बीच में लिसनिंग सेशंस स्टार्ट भी किए थे, करवाए भी थे हमने, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लिसनिंग सेशंस चले थे, लेकिन फिर उसका तो कोई खास रिस्पांस नहीं आया। रिस्पांस क्या आया? बच्चों को समझ ही नहीं आई अंग्रेजी, सारे तो इतनी इंग्लिश, फुल इंग्लिश चल रही है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर हमने उसको वाइंड अप कर दिया। तजर्बे सारे किए मैंने। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वोकैबुलरी सेशन आफ्टर 2 वीक्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वोकैबुलरी सेशन आफ्टर 2 वीक्स। ये भी पिछले साल था, अब दोबारा शुरू कर दिया है, बस सर जावेद अपनी टाइमिंग कंफर्म कर दे। आई एम स्टार्टिंग वोकैबुलरी सेशन ऑन 25 जनवरी। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? ये मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्या करोगी तुम? करोगी क्या? व्हाट विल यू डू? मतलब क्या इरादा है तुम्हारा? व्हाट विल यू डू? तुम क्या करने वाली हो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? वो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। देखो, कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती किसी के छोड़ने से। नहीं, अपनी जिंदगी खत्म नहीं करूंगी मैं, उसकी जिंदगी खत्म कर दूंगी। मतलब मार डालोगे उसको? हाँ, मार डालोगे, ऐसी बात करेंगे। व्हाट आर यू सर गोइंग आप टू, स्टोरियां बड़ी अच्छी बनाते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? फिजिकल क्लासेस में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए, बच्चे सुनते थे हमारी कहानियां, सर ये कहानियां आपकी बड़ी मजेदार होती। व्हाट आर यू अप टू? और बच्चे मतलब आप तो सिर्फ आवाज सुन रहे हैं, बच्चे तो मतलब कहते हैं, हमें ऐसा लगा एक लम्हे के लिए कि हकीकत में याद हो रही है, मतलब आप वाकई सीरियस है, आप पागल हो गए हो। इट्स नॉट, इट्स जस्ट अ स्टोरी। सर आप ड्रामे लिखना शुरू कर दें। बस बेटा, मैं कुरान की तफसीर पढ़ना शुरू करूंगा, अल्लाह पाक मुझे थोड़ी सी इंशाल्लाह और सबको थोड़ी दे तो। तौफीक, अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे दे। इतनी छोटी सी किताब है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, तो अल्लाह पाक हम सबको पढ़ने की और उसको यस सर, समझने की और उस पर अमल इंशाल्लाह करने की इंशाल्लाह तौफीक दे। सबको सबको। We can also use this structure। रमजान आ रहे हैं, अभी से नियत कर लें, रमजान से सर यस आई विल स्टार्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नियत कर ले, Day one, इरादा day कर ले। two. I will start आई विल reading the स्टार्ट translation इंशाल्लाह of डे every 1 and बकरा। 2। मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन जो है ना, वो मतलब एक रोजाना अपने इस प्लेटफॉर्म से मैं सुन भी लूंगा और लोगों को बोलूंगा आइए सुन भी लीजिए, तो हो सकता है कि दैट्स अ सुन भी वेरी गुड थिंग, ये बहुत जरूरी है। रमजान से नियत कर ले, तो फिर उसके बाद थोड़ी चाबी भर भर देते हैं अल्लाह पाक, फिर वो चलती रहती है 6-7 महीने तक।
We can also use the structure to talk about prediction. अब आप लोग पेशेंट गोई करने जा रहे हैं. अच्छा, जो पेशेंट गोई होती है अमूमन जो पेशेंट गोई होती है वो फ्यूचर सिंपल में आप कर सकते हैं. It will rain next week, she will die. ये इस तरह से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं. My brother will kill me, मेरा भाई मुझे मार डालेगा. प्रिडिक्शन पाकिस्तान will win the World Cup this year और next year. ये आप प्रिडिक्शन इस तरह से दे सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर कोई प्रिडिक्शन हालात को देखकर दी जाए, अगर कोई प्रिडिक्शन हालात को देखकर दी जाए, जैसे वो देखो, उड़ी बॉय की हालत तो देखो, सर पे कितनी गहरी चोट आई है, डॉक्टर बता रहे 5-6 हड्डियां भी टूटी है. ओ माय गॉड. ब्लड प्रेशर 650. माय गॉड. She is seriously injured. She is going to die. ये मरने वाली है. She is going to die. ये मरने वाली है. ये क्या है? She is going to die. It's a prediction. Prediction कैसे की आपने ये? हाथ देखकर, हालात देखकर. हालात देखकर, हालात को देखकर जो प्रिडिक्शन होगी वो गोइंग टू में जाएगी. लेकिन हालात को देखे बगैर आप घर में बैठे हुए ऐसे जुमले कस रहे, मर जाएगी वो. कैसी बातें कर रहे हैं? अरे यार, तो मतलब देख लो, एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट में हाईवे पे बचता कौन है? तो यार तो आप फिर भी आपने तो ऐसे ही मार दिया. अच्छा चलो, तो वहां जाके मार देंगे, चलो आओ देखने चलते उसको. शी विल डाई. शी विल डाई, वो मर जाएगी. ये प्रिडिक्शन है. हालात को नहीं देखा भी. हालात को देख लिया, शी इज सारा इज सीरियसली इंजर्ड. ओ माय गॉड, शी इज गोइंग टू डाई. माय ब्रदर विल किल मी इफ ही कम्स टू नो दैट आई स्मोक. मेरा भाई मुझे मार डालेगा जान से अगर उसको पता चल गया कि मैं सिगरेट पीता हूं. तो समझ ले बेटा, वो तेरे को मारने वाले हैं. क्यों, क्या हो गया? वो देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारी वीडियो बना रहा है. उड़ी, माय ब्रदर हैज सीन मी स्मोकिंग. मेरे भाई ने मुझे सिगरेट पीते हुए देख लिया है. ही इज गोइंग टू किल मी. वो मुझे मारने वाला है. वो मुझे मार डालेगा. ही इज गोइंग टू किल मी. बोलते ना, वो मुझे मार डालेगा. ही इज गोइंग टू किल मी. कैसी बातें कर रहे हो? नहीं मारेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ. नो, ही इज गोइंग टू किल मी. क्यों मारेगा? बस वो मुझे मार डालेगा. ही इज गोइंग टू किल मी. स्टॉप हिम. स्टॉप हिम. रोको उसको, गिर जाएगा वो. अरे नहीं गिरेगा. अरे रोको ना, देखो. स्टॉप हिम, ही विल फॉल. अब एक बार वो देखो, छत पे खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल कोने पे एंटीना सही कर रहा है. अरे वो देखे, सुने, वो देखे छत पे ऊपर, वो कोने पे बच्चे को गिरने वाला है वो. ही इज गोइंग टू फॉल. पप्पू पीछे हो जाओ, गिर जाओगे. लुक, ही इज गोइंग टू फॉल. होता है ना अक्सर बच्चे छत पे से पतंग उड़ाते हुए पीछे की तरफ जाके पट से गिरते हैं. चादरों की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो पीछे होते होते धड़म. थैंक यू वेरी मच. कितने लोग गिरते हैं इस तरह से. इट विल रेन टुडे. आज बारिश होगी. गर्मी देखिए कितनी हो रही है. इट विल रेन टुडे. लेकिन आपने बादल देखे? ओ हो, वो देखो कितने काले काले बादल आ रहे हैं. उड़ी बाबा, हाँ सही कह रही हो, बहुत तेज बारिश होने वाली है. हाँ चलो जल्दी घर चलो. इट इज गोइंग टू रेन हैवीली. इट इज गोइंग टू रेन हैवीली, यानी कि बहुत तेज बारिश होने वाली है. ये सवाल पेपर में आने वाला है, याद कर लो. आपने देखा गेस्ट पेपर में, तमाम गेस्ट पेपर के अंदर सवाल आया हुआ है. एयू खान के अंदर, शाजी में, हर सर असीम ने भी दिया हुआ है. हर टीचर ने गेस्ट पेपर में ये वो दिया हुआ है पेपर में अपने. ये सवाल आने वाला है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज गोइंग टू कम इन एग्जाम. ये आपकी प्रिडिक्शन हो सकती है. सिर्फ प्रिडिक्शन आप दे सकते हैं कि ऐसा होने वाला है. अब हो या ना हो, यू डोंट नो. समझ रहे आप लोग बात? Yes, sir. I'm going to hire an assistant. ये मेरा इरादा है. I am going to hire an assistant, physical assistant for my assistance. I'm going to hire. ये मेरा इरादा है. I'm going to hire physical assistant for my assistance. Assistance का मतलब होता है मदद, मदद के लिए. Because I cannot handle so many WhatsApp messages
It's getting very difficult for me. And for my wife as well, as she keeps on, she keeps, you know, all the time she remains angry with me. Do you have time for us? Like, no, I don't have. Sorry. See you next week. Be you about to सर ये आपने लिखा है इमीडिएट फ्यूचर वही पर इमीडिएट फ्यूचर यस तो सर ये आपने लिखा है आई एम अबाउट टू फिनिश योर क्लास सर ये सेंटेंस सही है जी जी बिल्कुल सही. अब be about to plus base form of verb talks about immediate future. Immediate future कौन सा होता है? कोई ऐसा काम जो आप बस फौरन से करना हो 3 से 5 मिनट में होने वाला है. आपको पता है, आपने फोन किया, सुने कहाँ हैं आप? बस दरवाजा खोलो, मैं पहुंचने वाला हूँ. मजाक ना करना, बताए कहाँ है? अरे फूल वाले के पास से तुम्हारे लिए फूल ले रहा हूँ. बस सर बस कर तुम्हें फूल अच्छे लगते हैं तो दरवाजा खोलो, तुम बस में आने वाला हूँ. यकीन नहीं आ सर रहा. मैं ना सर ये आपकी रियलिटी में तो कहानियों होता का नहीं है ऐसा. ये किसी ने dialogue अपना है. सर एक्सपीरियंस शेयर रियलिटी किया है में नहीं सर होता ऐसा. चलो कमल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है सही, दिल की बातें आप लोगों ने शेयर की. ये हकीकत में ऐसा नहीं होता, लेकिन हर बेगम चाहती है काश ऐसा होता. तो एक दो दफा हमने ऐसा किया है. बेगम का फोन आया इत्तेफाक से, तो खोलो, बस दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए फूल लेके बाहर खड़े. इत्तेफाक था कि वो फूल भी हाथ में थे, वो भी किसी स्टूडेंट ने क्लास में दिया था, क्लास खत्म हुई थी. तो खोलो. अभी रखा सर हाँ, तो जब भी बुकेट मिलता था तो हम यही कहते थे. फिजिकल क्लासेस होती थी, क्लासेस खत्म होती थी, फेयरवेल पार्टी होती थी, तो बच्चे फूल ला कर दे देते थे. सर ये थैंक यू वेरी तभी मच. था किसी स्टूडेंट ने दिया हाँ, तो स्टूडेंट ने दिया, वो हम बेगम को फॉरवर्ड कर देते थे, सर ये आपके लिए. अच्छा, दिया होगा किसी स्टूडेंट ने? जी नहीं, एक्सक्यूज मी, मैंने खुद खरीदा है. चले 12 इसी में खुश रहते थे वो लोग. आई एम अबाउट टू फिनिश योर क्लास. आई एम अबाउट टू फिनिश योर क्लास, बस वो यादें रह गई. अब फिजिकल क्लासेस की यादें ही रह गई. आई एम अबाउट टू फिनिश योर क्लास. अब ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि 3 से 4 मिनट में ऐसा हो जाएगा. अगर आपके पति देव ये कह रहे हैं बस मैं पहुंचने वाला हूं, आई एम अबाउट टू रीच, इसका मतलब ये है कि वो 2 3 4 5 मिनट में पहुंच जाएगी. याद रखिएगा, जब आप अबाउट टू सवाल करें तो बहुत ख्याल से इस्तेमाल कीजिएगा. आपके पास सुबह आप ऑफिस के लिए निकल रही थी और एकदम से फोन आ गया आपकी बेस्ट फ्रेंड का. हाँ अंबर, यार आप अबाउट टू लीव फॉर ऑफिस. आई विल कॉल यू when I reach office. I'll call you at 10 a.m. right? At tea time I will call you. Okay, don't mind it because I'm just about to leave. Otherwise I will get late. 500 रुपए काट लेते हैं ऑफिस वाले. I'm about to leave for office. I'm about to leave for office इसका मतलब है आपने गाड़ी की चाबी उठा ली थी, पर्स आपके कंधे में लटका हुआ था, और जैसे मोबाइल उठाया मोबाइल बच पड़ा. ठीक है ना? तो अब आप कहिए आई एम अबाउट टू लीव फॉर ऑफिस, क्योंकि आप अभी बस जा ही रही है, गाड़ी निकालेंगी. और थैंक यू वेरी मच. तो जब 3 से 5 मिनट हो, 5 मिनट से ज्यादा भी गोरा नहीं कह रहा है. ये नहीं कि आई एम अबाउट टू गेट मैरिड. जी नहीं, इट इज अबाउट टू रेन. अक्सर मैंने बच्चों के मुंह से ये जुमला सुना है, इट इज अबाउट टू रेन. आपको पता है बारिश 2 मिनट में हो जाएगी? नहीं पता. आप ये कहेंगे इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दिस इमीडिएट फ्यूचर एक्शन. इमीडिएट फ्यूचर एक्शन में ये शर्त है कि ये काम 2 से 5 मिनट में होगा. और बी अबाउट टू यही कहता है कि आप 2 से 5 मिनट, जैसे आई एम अबाउट टू फिनिश योर क्लास, मैं ये कह सकता हूँ. ठीक है Yes, ना? आगे बात समझ. एक नीचे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है. अरे खाना तो दूर की बात, उन्होंने तो एक गिलास पानी तक को नहीं पूछा था. अक्सर बोलते ना आप लोग इस तरह की बातें. yes, अरे sir. भाई 10 रुपए 100 रुपए तो दूर की बात, 1 रुपया नहीं है मेरे पास. नॉट टू स्पीक ऑफ. उसके बाद क्या लगाएंगे आप? 100 रुपीज.
Not to speak of 100 rupees, even I don't have 10 rupees. अरे देखना तो दूर की बात, नाम सुनना पसंद नहीं है उसको मेरा। अच्छा, not to speak of looking at me, she even does not like to hear my name. भाई हरकतें ऐसी हैं। बनाए कोई जुमला बनाए इंग्लिश में इस तरह का, पहले उर्दू बनाइएगा फिर उसकी इंग्लिश बनाइएगा। Not to speak of. Not to speak of. आपकी माइक में प्रॉब्लम आ रही है, निकाल दे, हेड्स भी निकाल दे फिर बनाए, नया लेना पड़ेगा। Sir, please repeat this structure. Not to speak of dash. अब not to speak of में अगर वर्ब लगाएंगे तो प्लस वर्ब आईएनजी भी लगा सकते हैं। Not to speak of, अरे सुबह उठना तो दूर की बात, दोपहर में कहते ना इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, मुझे समझ नहीं आती। Not to speak of, अब ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब आईएनजी में आता है। Not to speak of speaking English, even I don't understand it. Even I don't understand it. I even don't understand it. Not to speak of speaking English, I even सर don't अगर हम understand ये it. कहें she knows, आप उर्दू बनाए, पहले उर्दू बनाए, पहले उर्दू बनाए, पहले उर्दू। सर वो फ्रेंच नहीं जानती, वो इंग्लिश क्या बोलेगी? she knows फ्रेंच बोलना तो दूर की French, बात, not to speak English. सर कैसा? इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, उसे फ्रेंच नहीं आती। फ्रेंच बोलना तो दूर की बात, उसे इंग्लिश नहीं आती। Not to सर she speak knows of, French, not to speak of speaking French, not to speak of English. not to speak of speaking French, she even does not speak in English. उर्दू बोले पहले Yes, sir. फिर जुमला बनाइए। Not to speak of, not to speak of, Not to speak of. बात करना तो दूर की बात, मुस्कुराती तक नहीं है वो। Sir, Not to, kindly repeat करेंगे not to speak of. not to speak of talking, she even does not smile. She even doesn't look at me. अरे बात करना तो दूर की बात, देखती तक Sir, नहीं। इसका क्या मतलब है not to speak of? Not to स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये इस तरह से, ये करना तो दूर की बात। पानी पीना तो दूर की बात, मैं तुम्हारे घर में सांस नहीं लूंगा। सर, पैसे कमाना तो दूर की बात, उसे मेहनत करना नहीं आती। Not to speak of earning money, he even does not know how to work hard. मुश्किल है बेटा? काफी सारे। बहुत सारे जुमले बन देंगे, ठीक है। लेट्स कॉल इट Yes, sir. सोचना पड़ेगा। सोचते रहे, सोचूंगी मैं इस बारे में। जरूर जरूर। सोचना तो दूर की बात, मैं तो बोलता तक नहीं हूँ। बोलना तो दूर की बात, मैं तो सोचता भी नहीं हूँ। Not to speak of thinking. Not to speak of thinking, even I don't. Not to speak of speaking, I even don't think of it. सोचना तो दूर की बात, मैं तो I never think of. I even don't. प्रेजेंट भी लग सकता है, पास्ट भी लग सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है। I even no, okay.